warm welcome to everyone. I'm delighted to have you all join us today for the very first webinar hosted by SCRMP Pharmacy Wing, West Bengal chapter. Good morning. I'm Yashani Kalra, your host for today, accompanied by Mr. Kaushik Das, and I'm thrilled to present a session that's both insightful and relevant. Today's discussion focuses on an exciting topic from classroom to global careers, navigating pharmacy placements, scholarships, and international pathways. Before we dive in, I would like to tell you a little more about SCRMP, the organization behind this event. Founded in 2024 and based in Telangana, India, the Society of Clinical Research and Medical Professionals is committed to empowering healthcare professionals and advancing clinical research. Through innovation, collaboration, and education, SCRMP supports the growth of life sciences and clinical research, driving impactful change on a global scale. We offer multiple membership options, each tailored for supporting students, researchers, and professionals at different stages of their careers. These memberships come with exclusive educational resources, networking events, and opportunities like today's lecture series. As a lifetime member, you will enjoy several benefits, including internships in pharmacovigilance and medical writing through our collaborations with Novo Evidence, as well as a free manuscript publication in our journal. Joining SCRMP is a fantastic way to enhance your professional journey while making valuable industry connections. Now, it's my absolute pleasure to introduce today's esteemed speaker, Mr. Debraj Mukhopadhyay. Mr. Debraj Mukhopadhyay is a dedicated researcher and scholar in molecular and translational medicine. He is pursuing his PhD at the prestigious University of Cagliari, Italy. Supported by the Italian National MUR doctoral scholarship, he has distinguished himself with a gold medal winning Master of Public Health from Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University. He brings a wealth of research experience, having contributed to projects in Italy, Hungary, and leading Indian institutions like ICMR and NCDC. His work focuses on crucial areas such as molecular biomarkers, lung cancer, and public health. An active presenter at international conferences, including the European Respiratory Society, he is committed to advancing scientific knowledge and has publications in peer-reviewed journals. He is dedicated to contributing to the field and inspiring future researchers. Now I'd like, sir, to start the session. Over to you, sir. It's almost 5 a.m., 5:30 a.m. in Italy. I am talking from Italy. Right now, I am in Milan because I am doing my final year and I'm going to complete my final year this year. In the November 2025, I will submit my thesis. So basically, the thing is that, first of all, I would like to thank West Bengal chapter, SCRMP, for inviting me for this, great interactive session. If I remember correctly, I was also invited previously by SCRMP, obviously from Mustaq and Mozilul. They invited me, and this is the second time where I am again a chance to connect it with you all. So तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम क्लासरूम टू ग्लोबल कैरियर्स नेविगेटिंग फार्मेसी प्लेसमेंट स्कॉलरशिप एंड इंटरनेशनल पैथवेज। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पीएचडी स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलियरी का, फाइनल ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया बीफार्म में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अपना मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में अपना मास्टर्स किया है। मैं एमफार्म नहीं किया था। मैंने दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दिपसुरु जो न्यू दिल्ली में है, वहां से मैंने पढ़ाई किया। देन उसके बाद मैंने 19 मंथ्स काम किया एक कंसल्टेंसी में, स्काईवर्ड एनालिटिक्स में। उधर से मैंने सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस काम करते करते सीखा। एंड देन उसके बाद मैंने जो पीएचडी में अपना अप्लाई किया इटली में। मैं इटली में नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया एंड देन वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 4th टाइम आई गॉट सिलेक्टेड। मैं ये छोटा सा बात मैं बोलना चाहता था। तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। फ्रॉम क्लासरूम टू ग्लोबल कैरियर्स नेविगेटिंग फार्मेसी प्लेसमेंट स्कॉलरशिप एंड इंटरनेशनल पैथवे। ओके, सो इंट्रोडक्शन। सो एज वी ऑल नो, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है, यहाँ पे सब फार्मेसी स्टूडेंट्स है कि फार्मास्यूटिकल एजुकेशन सर्व्स एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ healthcare industry, shaping the knowledge, skills, attitudes, healthcare professional who drive the innovation and advancement in the patient care, obviously.
एज लैंडस्केप। मैं बस ये रीड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ज्यादा इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग सब फार्मेसी के स्टूडेंट हो और अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी के साथ जुड़े हो, जो आप लोग और बाकी स्टूडेंट्स को जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं, या फिर आगे कैरियर फर्दर मतलब कैरियर को आगे एक ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सोसाइटी है बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। मैं जब दीपसुरु में था तो वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेके बहुत सारे सोसाइटी किया करते थे, होता रहता है। तो करेंटली 2025 के लिए, इस साल के लिए ये सारे स्कॉलरशिप है जो मुझे लिंक्डइन पे एक मेरा कॉलीग है उनसे मिला है, वही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगाया हूँ, मैंने रेफरेंस नहीं डाला है। तो आप देख सकते हो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, चाइना, टर्की, थाईलैंड। तो यहाँ पे जो इटली का जो है, यहाँ पे इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे एमयू, जैसे हमारे देश में यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी, उसके बाद एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सारे जो नेशनल गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडीज है, उसके जैसा ही यहाँ पे इटली में क्या है, म्यूअर, म्यूअर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च। वही स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई किया था। एंड देन मेरा 3 राउंड पे होता है सिलेक्शन। क्या होता है, पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है आपका सीवी के साथ। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिकमेंडेशन लेटर। ओके, मैं क्यों इस जगह पे बार बार स्ट्रेच करता हूँ, बिकॉज अगर एप्लीकेशन जो आपका जो अल्मा माटर है वहां से आपको क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करोगे, कोई भी इंटर्नशिप करोगे, एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, जो बहुत पार्किंसन के ऊपर काम कर रहा है या फिर कोई रेस्पिरेटरी के ऊपर काम कर रहा है, एक ही चीज के ऊपर काम करना है, एक ही चीज के ऊपर स्पेशलाइज्ड आपको करना है। ये अगर फोकस आपको हट जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करोगे तब आपको बोला जाएगा कि जो फॉरेन प्रोफेसर है उनसे रिकमेंडेशन लेटर, उनसे एक होस्टिंग इंस्टीट्यूशन लेटर आप लेना पड़ेगा। तो प्रोफेसर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रोफेसर आपको तभी लेगा जब आपको आपका रिसर्च इंटरेस्ट उनके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच होगा। सपोज मैंने वहां से भी काम सीखा और मैं बार बार सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, इसका लोग क्यों करते हैं, व्हाई, रीजन बिहाइंड इज द एविडेंस जनरेशन। एविडेंस की करेंटली क्या चल रहा है, पुराना 5 साल का, पुराना 10 साल का, आपको पता है डेटाबेस है, कॉकरेन साइंटिफिक डेटाबेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपको एविडेंस जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है। क्योंकि रिकमेंडेशन का 4-5 मेरा फॉर्मेट है, देखो ये देखो, मेरा 4-5 फॉर्मेट्स है। ठीक है, एक ही बात लिखा है लेकिन 5 तरीके से लिखा है। ठीक है, जैसे ये मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज के साथ था, हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार, एक ही बात लिखा है लेकिन पैराफ्रेज कर करके लिखा है, बात समझो। और उस टाइम तो 2020 में तो ये सब, देखो 2021 में तो ये सब था भी नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात, था शायद, मालूम नहीं था। तो इसीलिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, मैं बोलूंगा कि सीधा कॉपी पेस्ट मत मारना, तो सब लोगों का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेम हो जाएगा। मेहनत करो, इंसान ने भगवान ने ये दिया है, इसको मेहनत करना है। एंड देन उसके बाद अप्रोच करो। अप्रोच करने के बाद अगर बिना काम का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा लोगों के साथ। जैसे मान लो एज एग्जाम्पल, मॉजिडुल मेरे साथ 2 बुक चैप्टर लिख रहा है, एग्जाम्पल। आप 2 बुक चैप्टर लिख रहा है, अब 2 बुक चैप्टर लिखेगा तो प्रोफेसर वेरानुत के पास वो अप्रोच कर पाएगा या मेरे पास अप्रोच कर पाएगा कि मैंने आपके साथ काम किया ये 2 चैप्टर, मेरे को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, मुझे मुझे सैन फ्रांसिस्को में काम करने जाना है। वर्क के लिए वो लोग लेटर ऑफ रेफर ही मांग रहे। अच्छा, आजकल का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का एक नया तरीका शुरू किया है स्कैम्स को रोकने के लिए। क्या है, ईमेल्स, रिकमेंडेशन लेटर थ्रू ईमेल, राइट। क्या होता है, एक लिंक दे देता है जो ऑफिस है या जो भी आपका जो जो जहां पे आप सिलेक्ट हुए हो। क्या करेगा, मेरा ईमेल आईडी ले लेगा, मेरे पास एक ईमेल आएगा कि मॉड्यूल टोल्ड दैट यू विल बी हिज रेफरी ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब, कुड यू प्लीज टेल अबाउट हिमसेल्फ फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी ईमेल ईमेल पोर्टल। लिंक आया, फिर आपको ये सारी चीज लिखना है। देखो यहाँ पे प्रोफेसर अरूप सेन ने साइन किया, ठीक है। अब इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप अगर देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है। इस ऑफिशियल ईमेल आईडी में आप जहां पे काम करने जाओगे वो लोग एक लिंक भेजता है, एक छोटा सा लिंक, क्लिक करना होता है, फिर आपको उसके बारे में लिखना है। एग्जाम्पल जैसे लिखोगे, लिखने के बाद क्या होगा कि आपको अपलोड करना होता है चीजें। तो ये डिजिटल रिकमेंडेशन लेटर आजकल चल रहा है आजकल। तो बी केयरफुल। क्यों केयरफुल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर के पास, इंडियन प्रोफेसर के पास यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी होते नहीं है। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है नहीं होते हैं। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे अपडेटेशन, यूनिवर्सिटी ईमेल, यूनिवर्सिटी पोर्टल। मैं जब दीपसुरु में था नहीं। आजकल दीपसुरु में मेरा यूनिवर्सिटी का मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जूनियर है, जिनको यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड किया गया है, मेरे टाइम पे था नहीं। तो मेरे को ईमेल के थ्रू, इस जीमेल के थ्रू ही
मेरे को अप्रोच करना होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी अगर आप प्रोफेसर का नहीं दे पा रहे हो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज क्या होता है कि जीमेल, याहू या फिर हॉटमेल या फिर जो भी आपका नॉर्मल ईमेल से और यूनिवर्सिटी ईमेल ऑथराइज्ड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, तो ये मेरा एक पेपर है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा पेपर है। अब यहाँ पे क्या है, ये ये पल्मोनोलॉजी का एक पेपर है। ठीक है, देखो, अब इस पेपर में आपको सारे एफिलिएशन मिल गया। जो लास्ट ऑथर है, मैंने बोला था एग्जाम्पल, ये लास्ट ऑथर है। ये लास्ट ऑथर का ईमेल आईडी दिया रहता है, आई थिंक नीचे है, ये रहा। ठीक है, ये ईमेल आईडी दिया रहता है। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑथर हूँ, ये लास्ट ऑथर है, शी इज माई सुपरवाइजर, सारा डिमेटिस। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल करना है कि मैं आपका पेपर पढ़ा, उस पेपर में मैंने देखा कि आप लोग, जैसे मान लो 2024 का ये पेपर है, दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। रिव्यू पेपर है, दैट मीन्स इसका रिसर्च पेपर अभी तक आया नहीं है। इसके मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम चल रहा है। आइदर ये इनके पास लोग है काम करने का, स्टूडेंट्स है ऑलरेडी, या स्टूडेंट है, और देयर इज नो स्टूडेंट। लाइक मॉजिबल अप्रोच मी सो मेनी टाइम, दिस टाइम लास्ट 1 मंथ ही इज वर्किंग विथ मी। आई थिंक लास्ट ईयर 2024 में मैंने जुलाई अगस्त में एक सेशन लिया था, जितना मुझे याद है। आई थिंक सितंबर में, आई फॉरगेट, बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटी मेरे को अप्रोच करते हैं। तो क्या था कि आपको ढूंढना कैसे है, तो अप्रोच करता रहा, मेरे पास था नहीं कुछ। फिर वेरानुत मैम ने जैसे ही मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने मॉड्यूल को एक पोजीशन दे दिया। वो 2 चैप्टर लिख रहा है, एक हीट इवेंट एंड फिजिकल हेल्थ, और दूसरा एथनो फार्माकोलॉजी का कुछ लिख रहा है, एक एल्सवियर का और एक नेचर का। 2 बुक में वो 2 चैप्टर उसका होगा। तो अप्रोच करते रहना है आपको। अगर कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा, स्कोपस इंडेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्कोपस में आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट हो गया। जैसे मान लो गूगल स्कॉलर में मैं बोलूंगा, लाइक ये है। ठीक है, तो ऐसे मैंने एपिलिप्सी के ऊपर देखा, एपिलिप्सी के ऊपर इन्होंने एक रिव्यू लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कॉपी करके प्रोफेसर ढूंढ रहा हूँ मैं, कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ये आ गया उनके बारे में। ठीक है, ये क्या है देखो, लिखा है प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, चीफ एपिलिप्सी डिवीजन। अब मान लो ये हिमावर्षी या मानसी जी एपिलिप्सी के ऊपर काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी, वेरी रिप्यूटेड। मेरा 2 दोस्त गया है इधर पीएचडी करने, शंकर भट्टाचार्य और प्रिया प्रिया खातून। ये दोनों लोग, दे आर फ्रॉम बांकुरा, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बांकुरा। तो एपिलेप्सी में नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट में है, आई थिंक डायबिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग। तो इनके पास ये देखो बायोग्राफी है, ये वीडियो है, ये कर रहा है, एक्सपर्टीज है। आपको यहाँ पे जाके इनका जो इनके बारे में पता चल जाएगा आपको कहाँ से। अच्छा, इसके इनके बारे में आपको इनका गूगल स्कॉलर से पता चल जाएगा। वो तो मिल गया आपको, इनका जो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मिल गया, इनका जो अबाउट है बायोग्राफी ये मिल गया, कहाँ पे क्या काम किया। अब इनका गूगल स्कॉलर में जाके, गूगल स्कॉलर एक सेकंड, ये रहा, रिसर्च गेट में है, कोई भी चीज गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट, देखो कितना रेपुटेड प्रोफेसर है ये। ठीक है, यहाँ पे जाके आप जब लॉगिन करोगे रिसर्च गेट में या गूगल स्कॉलर में, आपको इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। हालांकि ईमेल आईडी आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट करोगे तो ये देखो सीधा मेल पे, यहाँ पे देखो मेल आईडी मिल जाएगा उनका, देखो एक सेकंड, आ गया, ये देखो दिख रहा है मेल आईडी। मैं चाहता हूँ सभी को जिन लोगों ने कनेक्ट हुआ, ज्वाइन किया, चीजें होता रहेगा, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। डिमोटिवेटेड हो जाते हैं हम लोग, पता है बुरा लगता है, बट आई डू बिलीव दैट, वो एक बात है ना शाहरुख खान जी का, कि अगर कोई भी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये बहुत मानता हूँ कि आप चीजों को ना इंट्यूशन के साथ देखना शुरू करो, मैनिफेस्ट करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप जाके होंगे। एनीवे, मैं सभी को विश कर रहा हूँ, जहां पे भी हो, जो भी कर रहे हो, अच्छे से करो, मेहनत से करो, शिद्दत से करो, ऑनेस्टी के साथ करो, एवरीथिंग इज अचीवेबल। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, चाओ।